سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی مختلف قسم کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، کہیں پر صحافیوں پر حملہ کرنے کی، تو کہیں پر RSS کے پرچارک کی پٹائی کی، کہیں پر برقع پوش خاتون اور اس کے ساتھ موجود ایک فرد جو ہے وہ ٹریفک پولیس سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کرناٹک میں RSS پر دلت مصنف کی کتاب نے سیاست میں جہاں ہلچل مچائی ہے، وہیں پر اس پر مختلف قسم کے تبصرے آ رہے ہیں۔ حامد انصاری کو لے کر کے کس طرح کی تبصرے ہیں، تو وہیں پر لولو مارکیٹ میں نماز پڑھنے کو لے کر کے کس طرح کا ہنگامہ کھڑا ہوا، گجرات فسادات اور سنجیو بھٹ کو لے کر کے کیا خبر آ رہی ہے، یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ خبر ہے مدھیہ پردیش کے ایک علاقے سے آ رہی ہے جس کو وجے نگر تھانہ کے انترگت آتا ہے ایک بھاموری نامی چوراہا۔ وہاں پر ایک پولیس کرمی کے ساتھ مار پیٹ کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹریفک پولیس نے ایک برقع پوش خاتون ایک نوجوان کو اس کی گاڑی میں روکنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت جو ہے وہ خاتون اور نوجوان اس کے ساتھ جو ہے پوری طرح سے ہاتھا پائی پر اتر آیا، اور اس دور سے کھڑے ایک شخص نے یہ پوری ویڈیو بنائی تو اس کو جو ہے وائرل کر دیا۔ سب سے پہلے جو ہے ٹریفک پولیس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی خبریں لگائی جا رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے نوجوان کا جو ہے اس نے گرہبان وغیرہ تھاما، جس کے چلتے وہ خاتون بھی غصے میں آئے، اس کو بچانے کی کوشش کی، تو اس درمیان میں جو ہے ہاتھا پائی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی دونوں جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو اس وقت جو ہے متعلقہ علاقوں میں بہت زیادہ بحث کا باعث بنی ہوئی ہے، اور اس کا آپ یہاں پر نظارہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں یوپی میں صحافیوں کو سچ لکھنے پر گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک ویڈیو لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانے کی کوشش ہوئی ہے، اور تفصیلات یہ ہے کہ کل سون بھدر میں 2 صحافیوں کو گولی ماری گئی، لیکن میڈیا کے بڑے ادارے خاموش ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ خبر نہیں ہے۔ پورے سون بھدر میں بتایا جاتا ہے کہ BJP لیڈروں کی طرف سے غیر قانونی کانکنی کی جا رہی ہے، اور اسی غیر قانونی کانکنی کو لے کر کے یہاں کے مقامی صحافی لگاتار رپورٹنگ کر رہے تھے، اور عوام کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو تبھی جو ہے ان 2 صحافیوں کو یہاں کے دبنگوں کی جانب سے گولی مارنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں یوپی پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیے جانے کے بعد جو ہے تحقیقات کرنے کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین گرامی افغانستان میں ایک اور آج اہم ترین خبر سرخی بنی، اور وہ ہے صوبے ننگر کے مفتی نارنج باغ مدرسے کے محتمم شیخ سردار ولی ثاقب کو ان کے گھر کے اندر گھس کر کے ایک نامعلوم حملہ آور نے قتل کر دیا تھا۔ امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نامعلوم حملہ آور کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، پولیس کو قتل کی تفتیش میں اہم پیش رفت حاصل ہوئی، جلدی حملہ آور گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین گرامی سردار ولی ثاقب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بااثر سلفی عالم دین تھے اور ایک مدرسہ بھی چلاتے تھے۔ کابل ان کے گھر میں نامعلوم مسلح افراد نے گھس کر کے جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ کوئی کہتے کہ افراد بھی تھے، کوئی کہتے ہیں کہ تنہا شخص تھا جو اس طرح سے جو ہے ان کے گھر میں گھس کر کے مارا، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آئے اس موقع پر جو ہے عید کی بنیاد پر ان کے اہل خانہ بھی گھر میں موجود نہیں تھے، وہ اکیلے تھے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی ایک مدرسے کے محتمم ہونے اور ساتھ ہی اپنے علاقے کے معروف مفتی ہونے اور پھر ان کا تعلق سلفی جماعت سے ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ اچانک سرخیوں میں آیا، اور اس بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تبصرے بھی ہو رہے ہیں، جبکہ امارت اسلامیہ کی جانب سے صاف اور واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بھی قاتل ہوگا اس کو گرفتار کر کے اس سلسلے میں قانونی کارروائی
की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में सड़क पर साइड ना मिलने से नाराज एक पुलिस अफसर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रचारक को यरगमाल बनाकर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि वो अपना तारुफ करवाता रहा। उसने कहा कि उसकी वालिदा अस्पताल में भर्ती है और उन्हें वो देख के नहीं जाना है। उसके बावजूद पुलिस ने उसे 1.5 घंटे तक पुलिस चौकी में बिठा करके रखा। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक मामला जुमेरात को पेश आया था। इसकी इत्तला मिलती है आरएसएस कारकुनों ने थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। मकामी एमपी और एमएलए ने जाए वाक़े पर पहुंचकर बिदायूं रोड को ब्लॉक कर दिया। आधी रात तक जारी रहने वाले हंगामे के दरमियान 2 पुलिस एहलकारों और 8 कांस्टेबलों के खिलाफ अगवा, यरगमालियों को मारने, धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है। सर्कल ऑफिसर आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर पर कार्रवाई करते मुलजिम इंस्पेक्टर अंकित कुमार को मुअत्तल कर दिया गया। जुमेरात की रात देर गई सुभाष नगर थाने में 2 कांस्टेबल समेत 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस कार्रवाई के बाद आरएसएस के कारकुन खामोश हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से एक आरएसएस के प्रचारक के साथ मामूली से पेश आने वाले इस वाक़े के बाद किस कदर बड़ा हंगामा हुआ और किस कदर बड़े बड़े पैमाने पर जो एफआईआर इन पुलिस अफसरान के खिलाफ दर्ज की गई। ये होते हैं कि किस तरह से जब आप एक तंजीम से जुड़े होते हैं और तंजीम के अराकीन जिस अंदाज से यहाँ पर एहतिजाज दर्ज करवाया रात के 2 बजे और जिस अंदाज में पुलिस के खिलाफ खड़े हुए पूरे के पूरे कारकुनान, इसके चलते जो है पुलिस को मजबूर होना पड़ा कि जो है किस तरह अपने अफसरान को एक तरफ मुअत्तल भी करे और दूसरी जानिब जो है उसको कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर भी दर्ज करवाएं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बिदायून मार्ग के रहने वाले आरेंद्र आरएसएस के मथुरा शहर के प्रचारक हैं बताया जा रहा था। वालिदा की खराबी सेहत की वजह से वो कुछ दिन पहले बरेली में अपने घर आए थे और इसी मौके पर ये सारी चीज़ें पेश आई हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में ये किताब इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और वो है कर्नाटक के मुमताज़ दलित मुसन्निफ और समाजी कारकुन देवनूर महादेवा की आरएसएस पर लिखी हुई किताब आरएसएस आड़ा अगला। मतलब उसका यह आता है कि आरएसएस गहराई और चौड़ाई। इससे रियासती सियासत में खलबली मच गई है। दाएं बाजू के लोग किताब को आरएसएस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार देते हुए उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस किताब ने फरोख्त के मामले में रियासत में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक अलग बाब है और उन्हें उत्सव मूर्ति परेड देवता के तौर पर बयान किया गया और मजीद कहा गया कि हकीकी कंट्रोल नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास है। किताब में मुसन्निफ ने आरएसएस के बेशतर अरकान को मनुवादी कहा है और ये भी कहा है कि वो हिंदुस्तान के आईन को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवद गीता गुलामी का एक वसीला है। देवनूर महादेवा को एक नामवर दलित मुसन्निफ और कारकुन के तौर पर जाना जाता है और उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस किताब पर पाबंदी लगाने और मुसन्निफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। दाएं बाजू और बीजेपी के हामी इस 72 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब की इशाअत के वक्त पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि किताब सियासी मफादात के साथ 2023 के असम्बली इंतखाबात को ज़हन में रखकर लिखी गई। अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया ने जुमेरात को देवनूर महादेव की हिमायत करते हुए कहा कि वह आरएसएस के बारे में जो कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं उसमें क्या गलत है। सिद्धारामैया ने यह भी कहा कि देवनूर ने मुनासिब दस्तावेजात और सबूत जमा कर की किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सच बोलने की हिम्मत करता है तो आरएसएस उससे नाराज़ हो जाएगा क्योंकि उन्हें सच पसंद नहीं है, इसलिए वो देवनूर महादेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी इजहार की बुनियादी हक में रुकावट डालने वाला अमल है। इस किताब के 6 पब्लिशर्स हैं नाज़रीन गिरामी, जिन्होंने 9000 कापियाँ छापी हैं। मुसन्निफ ने अपने काम पर इख्तियार का दावा नहीं किया। सहाफ़ी और समाजी कारकुन गौरी लंकेश के नाम से मंसूब गौरी मीडिया ट्रस्ट भी पब्लिशर्स में शामिल है। किताब की तमाम कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और पब्लिशर्स बड़े पैमाने पर मज़ीद किताबें शाये करने जा रहे हैं। इस किताब का कई ज़बानों में तर्जुमा भी होना तय हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये किताब शाये होकर के आती है तो फिर आरएसएस की और मनुवादी के पीछे चलने वालों की एक बहुत बड़ी हकीकत खुल कर के सामने आएगी, जिससे एक बहुत बड़ा असर पैदा हो सकता है। इस बात का दावा किया जा रहा है इस किताब को लेकर के। फ़िलहाल ये किताब कन्नड़ा में है और इसमें ज़्यादातर आरएसएस किस कदर काम करता है और उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे नापाक साजिशें क्या हैं, उनके क्या मंसूबे हैं और हो सकते हैं, अगले दिनों में वो क्या कुछ कर सकते हैं और मनुवाद से किस तरह उसका जोड़ होता है, तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश की गई है।
नाज़रीन ग्रामी, आइए राज्य सभा सेक्रेटरीट के एक नए सर्कुलर में कहा गया है कि अब पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुजाहरे, एहतिजाज, धरना, रोज़ा या मजहबी तकरीब का इनेकाद नहीं किया जा सकता। धरना या एहतिजाज पर सर्कुलर पार्लियामेंट में बाज़ अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी के हुक्म पर अपोजिशन की नाराज़गी के दरमियान आया है। अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस सर्कुलर पर तनकीद की है और मरकज़ी हुकूमत पर हमला भी बोला है। पार्लियामेंट के 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून इजलास से पहले राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी ने एक नया बुलेटिन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अरकान की ताउन की तवक्को है। बुलेटिन में कहा गया कि अरकान पार्लियामेंट हाउस के अहाते को किसी भी मुजाहरे, धरने, हड़ताल, अनशन या किसी मजहबी तकरीब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे नाराज होकर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में चीफ व्हिप जयराम रमेश ने ट्वीट करके हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने 14 जुलाई को जारी करदा सर्कुलर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, विश्वगुरु का ताज़ा तरीन मशवरा, धरना मना है। उन्होंने अंग्रेजी में धरना लिखते हुए एच को ब्रैकेट में बंद करके उसे डरना की तरह इस्तेमाल किया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले भी बहुत सारे और पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें जुमला जीवी, तानाशाह, झूठ जैसे बेशुमार अल्फाज भी वो आप अब जो है पार्लियामेंट में नहीं बयां कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक किताबचा जारी किया गया है, अनार्किस्ट, शकुनी, आमरियत, आमिर, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून की खेती वगैरह जैसे अल्फाज अगर पार्लियामेंट में बहस के दौरान इस्तेमाल होते हैं तो पार्लियामेंट की कार्रवाई से भी हटा दिए जाएंगे। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा किताबचे के मुताबिक दोहरा किरदार, बेकार, नौटंकी, ढोल की पट्टी, बहरी हुकूमत जैसे अल्फाज भी गैर पार्लिमानी हैं और अरकान पार्लियामेंट से उनका इस्तेमाल ना करने की अपील की। पार्लियामेंट के आखिरी इजलास बहुत हंगामा खेज रहे। उन्होंने ज़रई क़वानीन से लेकर पेगासस जासूसी केस तक मुतादिद मसाइल पर अपोजिशन और हुकूमत को आमने सामने देखा। बहकर नाज़रीन गिरामी, देखना यह कि मानसून आने वाले पार्लियामेंट की इस बहस में क्या कुछ होता है, कौन से मौज़ूआत आते हैं। लेकिन इस तरह से इस वक्त जिस तरह से जो है पार्लियामेंट की जानिब से जिस तरह की पाबंदियाँ हुई हैं, उसको लेकर के इस वक्त तनकीदी तज्ज़िये शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नए बने हुए लुलु मॉल में मुबैना तौर पर नमाज की अदायगी पर तनाज़ा शुरू हो गया और हिंदू महासभा ने धरना दिया। तो बताया जा रहा है कि जिन अहबाब ने वहाँ पर नमाज अदायगी की थी उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि लुलु मॉल की इंतज़ामिया की जानिब से इस हंगामा आराई के बाद ये साफ और वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी भी धर्म की कोई भी पूजा पाठ या किसी भी तरह की प्रेयर से वाबस्ता चीज़ें, इबादत यहाँ पर नहीं हो सकती। नाज़रीन गिरामी, पहले भारत में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आती थी, हर तरह की आज़ादी देखी जाती थी कि आप कहीं भी अगर नमाज का वक्त हो जाता है तो पार्कों में खड़े होकर के भी नमाज़ पढ़ सकते थे, रास्ते में गुजरते हुए नमाज़ पढ़ सकते थे। लेकिन आजकल मुतअस्सिब इस कदर जो है जहनियत वालों की तादाद बढ़ चुकी है कि जो है वो कहीं भी कुछ भी होता है तो उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं, जिसके चलते ये एक छोटा सा तबका जो 5% भी कहा सकता है, 1% तबका जो इस तरह असबियत का शिकार है, वो तमाम धर्मों के लोगों के लिए इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द सद बना हुआ है, जिसके चलते हुकूमतें और इंतज़ामिया भी जो है वो शिकायत दर्ज करने पर मजबूर होती हैं या फिर इसका मौके का फ़ायदा उठाती हैं। ये दो भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में पिछले दिनों खुले लुलु मॉल मुबैना तौर पर अपने अहाते के अंदर नमाज की इजाज़त देने और सिर्फ मुसलमानों को नौकरियां देने पर तनाज़ात के दायरे में आ गया है। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब कुछ लोगों के जरिए मुबैना तौर पर लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। दाएं बाजू की तंजीम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ अरकान ने जुमेरात को लुलु मॉल के गेट पर धरना दिया। खुद को महासभा का कौमी तर्जुमान बताने वाला शशीर चतुर्वेदी ने इल्ज़ाम लगाया कि ख़ास बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। फिर मॉल इंतज़ामिया को चाहिए कि वह हिंदुओं और दीगर मजहबी लोगों को भी मॉल के अंदर पूजा करने की इजाज़त दे। चतुर्वेदी ने दावा किया कि उन्हें और महासभा की दीगर अरकान को मॉल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान लुलु मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, लुलु मॉल तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। मॉल के अंदर किसी भी तरह के मजहबी काम या इबादत की इजाज़त नहीं। हम अपने अमले और सिक्योरिटी एहलकारों को ऐसी सरगर्मियों पर नज़र रखने की तरबियत देते हैं। धरना मुजाहरे के दौरान सुशांत गोल्फ सिटी थाने की कुछ पुलिस एहलकार अमन अमार बरकरार रखने के लिए लुलु मॉल के बाहर पहुंचे। इसके बाद सुशील चतुर्वेदी और तंजीम के दीगर लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई है।
शिकायत में कहा गया है कि माल के अंदर नमाज अदा की गई, जो कि अवामी मकामात पर नमाज की इजाज़त न देने की पॉलिसी के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक लुलु माल के 70% मर्द मुलाजिमीन मुसलमान हैं और 30% ख़वातीन मुलाजिमीन का ताल्लुक हिंदू बरादरी से है। ऐसा करके लुलु माल की इंतज़ामिया लव जिहाद को फ़रोग़ दे रही है। नाज़रीन गिरामी, कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँचा दी जाती है, आप इसका अंदाज़ा लगा लें। महासभा के अरकान ने जुमा को लुलु माल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पुलिस से इजाज़त भी मांग ली। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि एक तो लुलु इंतज़ामिया ने लखनऊ में हज़ारों करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की है और ये सब कुछ क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। ऐसे में अब शायद लुलु मार्केट को निशाना बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है हिंदुत्व मुतासिबों की जानिब से, ये कहा जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उधर फ्रांस से खबर आ रही है कि फ्रांस की जनूबी मगरिब में 4 रोज़ से जारी आग से लगभग 7300 एकड़ का रकबा तबाह हो चुका है। जी हाँ, मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 जुलाई को गरोंदे के इलाके के 2 जंगलात में बहुत ज़बरदस्त आग लगी और इसकी अभी तक बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। 1000 से ज़ायद अफराद और 9 आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टरों के साथ चौथे रोज़ भी ये कार्रवाई जारी है, लेकिन आग है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है। गरोंदे के इलाके आर्काचोन और लैंड्रियस में लगने वाली आग की वजह से जहां रेस्तोरां और मकानात को नुकसान पहुंचा, वहीं 11,000 अफराद जो इलाके में छुट्टियां गुजार रहे थे उनको आसपास के महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 7300 एकड़ अराजी आग की लपेट में आ चुकी है, जिससे बहुत बड़ी तबाही मचने की और नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मगरबी अफ्रीका हमेशा दहशतगर्दाना हमलों के जद में रहता है। ऐसे में एक रिपोर्ट आई है कि 4 सालों में मगरबी अफ्रीका में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों के बाइस 14,500 अफराद अब तक अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ECOWAS एक इक़्तिसादी बरादरी की जो मगरबी अफ्रीकी रियासतों पर मुश्तमिल एक कमीशन है, उसके साबिक सदर जैन कलाड कासी ब्रो और कमीशन के नए मुकर्रर करदा सदर डॉक्टर अमर अलियो टोरे ने नया ओहदा संभालने के दायरे कार में नाइजीरिया के दारहुकूमत अबूजा में यकजा हुए थे और उस वक्त ये रिपोर्ट सामने आई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में खित्ते में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों ने 5.5 मिलियन अफराद को बेघर किया। ब्रो ने कहा कि इन हमलों में कम से कम 14,500 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 सालों में खित्ते में सिक्योरिटी के मसाइल मजीद ख़राब हुए हैं। ब्रो ने नए तैनात होने वाले कमिश्नर टोरे पर जोर दिया कि वह खत्ते में दहशतगर्दी के फैलाव को कम करने के लिए मजीद काम करें। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ मगरबी अफ्रीका को जिस तरह से तबाह व बर्बाद कर रही हैं, वो तो आप देखते हैं कि हम वहाँ की खबरें आपके सामने अक्सर रखा करते हैं। बैठे नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।